گالیاں دو گے کیا کرو گے؟ گالی کسے دو گے؟ میری ماں کو، میرے باپ کو، میرے بچوں کو؟ تمہیں پتہ نہیں ہمارا موٹو کیا ہے؟ فدا کا امی و ابی و اولادی و نفسی و روحی یا رسول اللہ. تمہاری ہر گالی کے آگے بڑھتے ہیں ہم. یہ لگے رہو تم. سنو اور آپ بھی سنیں. سنو آئی کین گیٹ مائی بیوٹیز ڈو دا جاب. They are very good at breaking people. Once we leak his pics and audios, he's done. لکھ دی لعنت توڑے تے اور کچھ بھی نہیں. لڑکیاں میرے پیچھے چھوڑو گے کہ وہ مجھے اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کریں گی. پھر میرے کوئی آڈیوز جو ہیں وہ جائیں گے ان کی طرف, تصویریں جائیں گی اور اس کے بعد اسکرین شاٹس ہوں گے اور وہ ریلیز ہو جائیں گے پبلک میں. دس از, آپ علمی اختلاف کو اس حد تک لے کے جاؤ گے تم. شرم نہیں آتی؟ تمہاری امی کو پتا ہے یہ حرکتیں کرتے ہو تم, بہنوں تمہاری کو پتا ہے یہ حرکتیں کرتے ہو. کبھی ان کا سوچا ہے تم نے؟ اتنے بےغیرت ہو چکے ہو تم لوگ یار. علمی اختلاف میں تم لڑکیاں استعمال کرو گے تو غیرت کا منیمم لیول ہوتا ہے کوئی. شاید آپ لوگوں کی طرف نہیں ہوتا. خیر, ماؤں کی کوکھیں بانجھ ہو چکی ہیں, وہ ویران ہو چکے ہیں گھر جہاں پہ ایسے بچے پیدا ہوں گے جو امر حق کو چھین کے تمہیں اس طرف لے کے جائیں گے. میں بھی یہی بات کہتا ہوں, اللہ تعالیٰ حرف کبر سے محفوظ رکھے, اپنی امان میں رکھے, اپنی پناہ میں رکھے. لیکن تمہاری یہ کوشش ہے کہ تم کیسر احمد راجہ کو کھینچ کے اپنی طرف لے کے جاؤ گے تو یاد رکھو کہ واقع ہی وہ ماؤں کی کوکھیں وہ بانجھ ہو چکی ہیں, وہ باپ مر چکے ہیں. اس لیے کہ ہمارا موٹو ہے کہ لا کفر بعد الایمان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایمان کے بعد کوئی کفر نہیں ہے. کہ اگر آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں ٹویٹر سے اور کسی بھی سٹیج پہ اگر آپ ٹویٹر سے جڑتے ہیں تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ٹویٹر سے آپ ہمیں پیغام یعنی کہ میسج نہیں بھیج سکتے. میسج کے لیے آپ کو یوٹیوب پہ آنا ہوگا. اگر صرف آپ نے بات سننی ہے, گفتگو میں حصہ لینا ہے, دین بائی آل مینز بالکل ٹویٹر پہ آپ رہیے. دیٹ از پرفیکٹلی فائن. اچھا, آج آپ سے ایک کچھ چیزیں دکھانی ہیں. سب سے پہلے میں بہت مایوسی ہوتی ہے, بڑے عرصے سے ہم یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہماری یہ جو دیسی سیکولرز اور اس طرح کے جو لوگ ہیں, یہ نہ ڈبیٹس, نہ گفتگو, نہ کوئی ریشنل, نہ کوئی عقل. I mean, literally they just run their horse. گھوڑا جس طرف مرضی منہ کر کے دوڑ پڑے یہ بھگا دیتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں شک بھی تھا کہ جتنی کوآرڈینیٹڈ ایفرٹس ان کی ہوتی ہیں کہ ایک ٹویٹ آتی ہے, ایک پوسٹ آتی ہے اور اس کے بعد وہ پھیل جاتی ہے ہفتے کے آخر تک ہر طرف, تو یہ کوآرڈینیٹڈ ایفرٹس کے بغیر نہیں ہو سکتا. دس از واٹ وی مینٹین فار اے لانگ پیریڈ آف ٹائم, بٹ ناؤ ایکچولی سم ایویڈنس ہیز کم تھرو. میں آپ کو تھوڑی سی اس کا میں بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ مجھے کچھ دن پہلے کسی بھی طرح سے ایک پیغام پہنچا کہ تھوڑے سے کیئرفل رہیے گا, دیر آر پیپل ہو آر کمنگ آفٹر یو. تو میں کہ تو مجھے روز ہی ایسی باتیں سننے کو ملتی ہیں, کبھی ٹویٹر پہ آتی ہیں, کبھی کیسے آتی ہیں, کوئی بھائی پرائیویٹلی آ کے بھی ایسی باتیں بتا دیتے ہیں, کوئی کیسے. تو چلیں, اللہ کا شکر ہے کہ اچھا سوچنے والے ہیں, سو دیٹ پارٹ از فائن. لیکن مجھے بتائے گا کہ میسیجز کی تھوڑی سی تفصیل آئے گی. پھر مجھے ایک ای میل موصول ہوتی ہے جس میں مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے اس وقت اس کا جو ہیڈر تھا, اس واز سم تھنگ لائک بی کیئرفل, دے آر چیزنگ یو اور دے آر کمنگ آفٹر یو, سم تھنگ لائک دس. اور اس میں کچھ اسکرین شاٹس ہیں اور اگین میسج بھی بڑا سینسٹر سا اس میں لکھا ہوا ہے کہ میری آپ فکر نہ کریں ڈھونڈنے کی, کیونکہ آپ ڈھونڈ نہیں پائیں گے. That's very like Hollywood grade type. اور پھر میں نے جو ابھی ای میل بھیجی پکچرز کنفرم کرنے کے بعد کہ اس میں کوئی وائرسز وغیرہ تو نہیں ہے, کوئی ایسی بات تو نہیں ہے, تو اسکرین شاٹس میں ڈیلیٹ اس کو میں ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتا تھا اس سے پہلے کہ اس ڈر سے کہیں ایکسس لوز نہ ہو جائے, کیونکہ کچھ سیلف ڈسٹرکشن والی ای میلز ہوتی ہیں, کچھ کیسی ہوتی ہیں. تو خیر وہ تسلی کرنے کے بعد پکچرز میں نے ڈاؤن لوڈ کی, ان کو میں نے ای میل واپس کی کہ بھائی کون ہیں آپ, تو آگے سے میسج آیا اسٹینڈرڈ کہ وہ میل ڈلیوری نوٹیفیکیشن جو آتا ہے کہ آپ کی ای میل نہیں جا سکی. یعنی کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان دا مین ٹائم وہ جو ای میل ایڈریس تھا وہ بھی ختم ہو چکا تھا. تو اینی وے, اب میری یہ ذمہ داری ہے, کیونکہ صرف میری بات نہیں ہے, اس میں ایک اور بھی صاحب ہے ان کا بھی ذکر ہے کہ یہ لوگ کر کیا رہے ہیں, اور میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ کس قدر اخلاق باختہ لوگ ہیں, کس قدر یہ گرے ہوئے لوگ ہیں کہ کیا واقعی آپ لوگ یعنی اس حد تک جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, کچھ انسان کو ہوتا ہے, کچھ باتیں ہوتی ہیں وہ کسی کو پسند نہیں کرتا. دیر آر سرٹن تھنگس دیٹ پیپل ڈو, بٹ اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ
अखलाकी गिरावट के उस लेवल तक चले जाएँ। मैं अभी वो डाउनलोड कर रहा हूँ, मुझे बस एक 1 सेकंड दीजिएगा, उसके साथ मैंने एक चीज़ और है, वो भी मैंने एक्सप्लेन करनी है। सो लेट मी क्विकली टेक दैट। अच्छा जी, राइट। चलिए मैं इसको मैं शेयर करता हूँ। लेट्स वॉच इट टुगेदर, शैल वी? अब आप देखते जाएँ और शर्माते जाएँ कि ये तबका कैसा है। मैं माज़रत चाहता हूँ, इससे मैं बड़ा इसको मैं कर नहीं सकता। होपफुली आप इसको अपनी अपनी स्क्रीन पे बाद में ज़ूम इन करके देख पाएँगे कि ये है क्या। कहानी स्टार्ट होती है डॉक्टर पिंकर साहब या साहिबा कोई उनसे। उनका पहला मैसेज है कि आई वांट टू डिस्ट्रॉय कैसर। शुड आई कॉल हिम आउट फॉर अ डिबेट और गो टू हिज लाइव स्ट्रीम्स? ये वो मशवरा माँग रही हैं हूएवर दिस पर्सन इज़, कि उन्होंने मुझे डिस्ट्रॉय करना है। या ओके फाइन। हालाँकि ऐसी इसमें क्या डिस्ट्रक्शन होती है, गुफ्तगू ही होती है, लेकिन चलें बहरहाल। आगे से एक और साहब हैं जिनका यहाँ पे नाम लिखा हुआ है फ्रूट मक्खी 1 2 3 एंड इट टुक मी सम टाइम टू एक्चुअली रीड। मैं समझ नहीं पा रहा था क्या लिखा हुआ है। तो खैर फ्रूट मक्खी 1 2 3 इनकी तरफ से आगे से जवाब आता है लीव इट। तो आगे से डॉक्टर पिंकर का जवाब आता है थोड़ा-सा गुस्से भरा जो टोन है उसकी, व्हाई? अच्छा, इसमें जो गालियाँ लिखी हैं, बहुत लिखी हैं, वो हमने जो हैं बीच में गालियाँ, किसी का नाम, कोड नेम, ज़ाती नाम, वो फिर हमने ख़त्म कर दिया है बीच में कि वो अच्छा नहीं लगता इस तरह से। तो आगे से उन्होंने लिखा कि ही इज़ एन एफिंग इडियट हू नीड्स अ लेसन। तो फ्रूट मक्खी साहब की तरफ से या साहिबा की तरफ से आगे से जवाब आता है कि यू न्यू हियर, तुम यहाँ पे नए हो या नई हो? तो डॉक्टर पेंकर का जवाब आगे से है जी हाँ, फिर हूँ। अब ये गुफ्तगू इन दोनों की, बहन-भाइयों की, बहनों-बहनों की, भाइयों-भाइयों की, व्हाटएवर चलना शुरू हो जाती है। तो फ्रूट मक्खी उनको रेफ़र हैं किसी और। अच्छा, मैं अब ही वाली टोन में जा रहा हूँ, ये ही है, शी हैं, दोनों में बार-बार ही, शी कहता बार-बार अच्छा नहीं लगता। तो ख़ैर फ्रूट मक्खी साहब आगे से कहते हैं कि रीड द थ्रेड अबाउट हिम एंड एक और पाकिस्तान के बहुत बड़े सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। उनका नाम लिखा है, उनको मैंने प्राइवेटली मैसेज भेज दिया कि तो आप भी थोड़ा-सा केयरफुल रहें। और साथ ही लिखा हुआ है कि वी आर वर्किंग ऑन देम, कि हम उन दोनों पे ही काम कर रहे हैं। अच्छा, काफ़ी टाइम के बाद फिर आगे से जवाब आता है कि देख ली है लेकिन मैं खुद इसका बाजा बजाना चाहता हूँ। अच्छा, ये तो क्लियर भी हो गया है कि ये तो मेल है, मैं बाजा बजाना चाहता हूँ। अच्छा जी। साथ आगे से जवाब उनकी तरफ से एक फ़ॉलो अप क्वेश्चन आता है कि इतना डरते क्यों हो उससे? तो फ्रूट मक्खी की तरफ से जवाब आता है आगे कि यू वांट ऑनेस्ट आंसर बिकॉज़ ही इज़ गुड, ही नोज़ साइंस, फिलॉसफी, रिलिजन एंड ही इज़ ऑलवेज़ काम। थैंक यू, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका, आई रियली अप्रिशिएट दैट। और आगे से वो फिर पूछते हैं कि व्हाट डू वी हैव? एंग्री एंड स्टूपिड ट्रोल्स हू आर ओनली गुड एट प्रोवोकिंग। दैट इज़ आल्सो ट्रू, अपार्ट फ्रॉम द वन फैक्ट दैट दे आर नॉट वेरी गुड एट प्रोवोकिंग आइदर। प्रोवोकिंग होती है कि किसी चीज़ को छोड़ दो, किसी चीज़ को पकड़ लो, लेकिन जब आप शुरू हो जाते हो ना एक ही तरफ, तो लोग उल्टा आप पे शुरू कर देते हैं, चल जाता है आप गेम क्या खेल रहे हैं। खैर, तो ये बातें सुनने के बाद आगे से डॉक्टर पेंगर की तरफ से जवाब आता है ट्रस्ट मी यार। अच्छा, यहाँ तक का आपने सुन लिया है कि ट्रस्ट मी यार, तो आगे से थोड़ा ना फ्रस्ट्रेशन में जैसे बंदा आके पूछता है कि ट्रस्ट यू टू डू व्हाट? किस चीज़ का एतबार करूँ मैं? यू थिंक वी हैवंट ट्राइड? He got Harris to accept that we don't have morality. Incest is acceptable, blah blah. Hello, Harris. Yeah, not only him, the number of you, they all accepted. All accepted इसलिए कि इस्लाम पे वन वे ज़ुबान दराज़ी करना बड़ा आसान है। जब अपने नज़रियात का दिफ़ा करना पड़ता है तो लग पता जाता है। तो खैर, फिर काफ़ी देर जवाब नहीं आता या कुछ मिनट जवाब नहीं आता, तो फ्रूट मक्खी खुद ही सिचुएशन को काम डाउन करने के लिए फरमाते हैं कि जस्ट स्टे काम। We are looking for someone who can take care of, who can take him to cleaners. Right now, every influencer from all groups, ये कितने coordinated हैं? All groups is told to disengage with him. Everyone was getting their handed to them. सॉरी, ये भी मुझे रिमूव कर हाइड कर देना चाहिए था, माजरत इसकी, ये बीच में से स्किप हो गया। लेकिन ये बात जो कही है ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इनके सारे जितने थे ना, ये अब मैं क्या नाम लूँ, किसी का अच्छा नहीं लगता, ये सारे के सारे मुझसे लड़ते रहते थे। यूट्यूब पे ट्विटर पे, फेसबुक पे कमेंट्स और मेरे यूट्यूब में आके कमेंट्स करने। इनके जो बड़े नाम हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। अच्छा, फिर अचानक ही सारे रुक गए। होता है ना 1-2 दिन आहिस्ता-आहिस्ता हुआ कि करते-करते
महीना डेढ़ लगा एंड बंदा कहता है कि चलो यार मुझे तंग आ गए होंगे, मैं कौन सा बहुत इंटरेस्टिंग आदमी हूँ जो हूँ आपके सामने हूँ। लेकिन अचानक ही दे जस्ट पुल द प्लग। ये यहाँ से पकड़े जाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे जो ट्रोल्स के कमेंट्स आते हैं ना मेरे यूट्यूब पे, मैं उनको एनालाइज़ करता रहता हूँ, मुस्कुराता रहता हूँ कि एक मैंने वीडियो बनाई, उसमें लोगों ने आई, अच्छी बातें की, किसी ने फीडबैक थोड़ा सख्त दे दिया, किसी ने डिसएग्री किया, चलिए चलता रहता है। अच्छा कुछ आगे से होते हैं फिर एक टाइम ऐसा आता है कि एक सिलसिला शुरू हो जाता है। एक से बढ़कर एक बदतमीज़ी और गाली और ट्रोलिंग और ये और वो, और मैं सुनता रहता हूँ, देखता रहता हूँ उनको, माफ़ी चाहता हूँ, और सोचता रहता हूँ कि इनको किसी ने नहीं ये नहीं बताया कि ट्रोलिंग करनी ही है तो अपने आप को बाकी ऑडियंस में छुपा के करो। एक पैटर्न बनाओ इस तरह से कि थोड़े-थोड़े टाइम के बाद आपका कमेंट आए तो पता चले कि यार इतने लोग खिलाफ हैं। जब घंटे डेढ़ के अंदर आते हो, सारा मलबा अपने ज़हनी गलाज़त वहाँ पे ज़हनी हैज़ा फेंक के चले जाते हो और उसके बाद कमेंट्स नॉर्मल स्टार्ट हो जाते हैं, तो सबको पता चल जाता है कि ये बेवकूफ़ ही आए थे। बिल्कुल ऐसे जैसे अचानक उन्होंने बायकॉट कर दिया तो अब वो कन्फर्म भी हो गया। पहले तो मेरा शक था कि किसी ने पीछे इनसे कहा है, बल्कि इनका एक रह गया था, उसने सॉरी ट्विटर पे, एक्स पे मुझसे थोड़ी देर लगा रहा, तो मैंने उसे कहा था कि तुम्हें मेमो नहीं मिला अभी तक? बाकी सारे चुप कर गए हैं, तुम क्यों मुझसे बातें कर रहे हो? तो उसने भी एकदम से मुझसे फिर डिसएंगेज कर दिया। सो दिस इज़ नाउ वी हैव द एविडेंस ऑफ इट। अच्छा आगे से डॉक्टर पेंकर की तरफ से जवाब आता है कि यू साउंड इम्प्रेस्ड बाय हिम। अब ना फ्रस्ट्रेशन दोनों तरफ से चल रही है कि तुम बड़े बड़े मुतासर लग रहे हो उससे। तो उसने आगे से कहा फ्रूट मक्खी ने कि नो गोना लाई, आई एम इम्प्रेस्ड। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं वाकई इम्प्रेस्ड हूँ। इमेजिन इफ ही वाज ऑन आवर साइड, इग्नोर द रॉन्ग ग्रामर, इट शुड हैव बीन इफ ही वर ऑन आवर साइड। लेकिन इमेजिन करो कि अगर वो हमारी साइड पे होता। आई टोल्ड, आगे एक नाम लिखा हुआ था। अच्छा वो नाम मैं उससे वाकिफ नहीं, जो लग रहा है कि कोड नेम ही है किसी का। नाम भी बड़ा आम सा है, लेकिन इन लोगों से राब्ता रहता है। मैं इस नाम से वाकिफ़ नहीं हूँ, लेकिन फिर भी एहतियातन मैंने उसको छुपा दिया है कि जस्ट इन केस अगर कोई और जानता हो उसको नाम से, तो फिर ये अच्छी बात नहीं है। एहतियात करनी चाहिए, ज़िम्मेदारी के साथ बात करनी चाहिए। एनीवे आई टोल्ड दैट पर्सन टू विन हिम ओवर, बट अदर ग्रुप्स आर ट्राइंग टू, ये तीर के नीचे जुमले का अगर रब्त बनाएँ तो ये बनता है ट्राइंग टू प्रोवोक हिम लाइक दैट्स गोना वर्क। हाँ, मैं मुतासिर हूँ और मैंने फलाँ-फलाँ से कहा था, फलाँ बंदे से, कि उसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करो, इमेजिन करो कि अगर वो हमारी तरफ हो तो फिर क्या हो? लेकिन बाकी ग्रुप्स जो हैं वो सिर्फ़ उसको प्रोवोक करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे वाक़ई वो कामयाब हो जाएँगे। यार मुझसे वो आज लगा नहीं, मैंने मँगवाया भी था। एक क्लिप है अमर भाई का जिसमें वो कहते हैं कि उन माँओं की कोखें बाँझ हो चुकी हैं। वो वीरान हो चुके हैं घर जहाँ पे ऐसे बच्चे पैदा होंगे, जो अमर हक को छीन के तुम्हें उस तरफ लेके जाएँगे। मैं भी यही बात कहता हूँ, अल्लाह ताला हर्फ़े किब्र से महफ़ूज़ रखे, अपनी अमान में रखे, अपनी पनाह में रखे। लेकिन तुम्हारी ये कोशिश है कि तुम कैसर अहमद राजा को खींच के अपनी तरफ लेके जाओगे, तो याद रखो कि वाक़ई ही वो माँओं की कोखें वो बाँझ हो चुकी हैं, वो बाप मर चुके हैं। इसलिए कि हमारा मोटो है कि ला कुफ़र बादल ईमान या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ईमान के बाद कोई कुफ़र नहीं है। तुम ट्राई करके देखो, अल्लाह हर्फ़े किब्र से महफ़ूज़ रखे, तुम करके ट्राई देख लो। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अच्छा यहाँ पे कहानी में एक नया किरदार ऐड होता है, वीरू प्रधान अंडरस्कोर 00251। एस्पियोनाज, पता नहीं क्या फ़िल्में देख-देख के खैर चलें, प्राइवेसी भी रखनी होती है। अच्छा, वो आगे से कन्फर्म करता है कि वी हैव अ ग्रुप ऑन यूट्यूब टू, दे हिम इन कमेंट्स। यस वीरू दे ट्राई, ट्रू। वो भी पैटर्न मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया, पाया जाता है। अच्छा कोई जवाब नहीं आता तो वीरू प्रधान एक चीज़ कहते हैं, और ये बड़े गौर से सुनिएगा और देखिएगा कि ये किस कदर गंदगी में गिरा हुआ है, और ये ग्रुप है। अब ये नाम जो है मैं नहीं कह सकता कि एक नाम कोई भी रख सकता है, लेकिन बज़ाहिर ये नाम जो है ये एक टिपिकल एक एक रिलीजन, और मैं ऑब्वियसली उस रिलीजन के सारे लोगों को नहीं कह रहा, लेकिन छोड़े नाम को भी, बहरहाल ग्रुप तो है, ये तो बात क्लियर हो गई। वो कहता है सुनो, और आप भी सुने। सुनो, आई कैन गेट माय ब्यूटीज डू द जॉब। They are very good at breaking people. Once we leak his pics and audios, he's done. लख दी लानत तोड़े थे और कुछ भी नहीं। लड़कियां मेरे पीछे छोड़ोगे कि वो मुझे अपने जाल में फंसाने की कोशिश करेंगी, फिर मैं, मेरे कोई ऑडियोज जो हैं वो जाएंगे उनकी तरफ, तस्वीरें जाएंगी, और उसके बाद स्क्रीनशॉट्स होंगे और वो रिलीज हो जाएंगे पब्लिक में। दिस इज, आप इल्मी इख्तलाफ को
इस हद तक लेके जाओगे तुम? शर्म नहीं आती? तुम्हारी अम्मी को पता है ये हरकतें करते हो तुम? बहनों तुम्हारी को पता है ये हरकतें करते हो? कभी उनका सोचा है तुमने? इतने बेगैरत हो चुके हो तुम लोग यार। इल्मी इख्तिलाफ में तुम लड़कियां इस्तेमाल करोगे? तो गैरत का मिनिमम लेवल होता है कोई। शायद आप लोगों की तरफ नहीं होता। खैर, अब किसी ने ये वीरू को लिफ्ट नहीं कराई। वो जो पिछली कन्वर्सेशन चल रही थी ना, उस पे पिंकर का फॉलो अप क्वेश्चन आता है कि प्रवोक हाउ, कि वो कैसे प्रवोक करते हैं। तो आगे से फ्रूट मक्खी का जवाब है कि ही इज गॉट ए बंच ऑफ मिनोज who try to provoke him on his evening post and video like that's gonna work. मेरा ख्याल है वो लिखना चाह रहे थे एवरी पोस्ट, लेकिन वो शायद टाइपो यहाँ पे हुआ। वो जो ऑटो प्रिडिक्टर होता है उस वजह से कि कुछ मिनोज हैं, मिनियंस हैं, जिनको इस काम पे छोड़े हुआ है कि मेरी हर ट्वीट, हर पोस्ट, हर वीडियो के नीचे कुछ ना कुछ करना है। ये बात फ्रूट मक्खी बिल्कुल ऐसी ही है। कुछ को तो मैं इतनी दफ़ा वो कर चुके हैं कि उनको तो दूसरे लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि शर्म करो यार, अगर तुम्हें ये मुँह नहीं लगाता, तो तुम ही को क्या ना होता है, एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। अगर वो है तो कम से कम छोड़ दो। तो ये तो पक्की बात है कि ऐसा ही होता है। वो जो भी जिस आदमी का नाम ले रहा है कि उसने कुछ चूज़े छोड़े हुए हैं और वो उनके ख़्याल में वो मुझे प्रोवोक करके, तो जो मैं काम कर रहा हूँ, मजमूई तौर पे हम सब काम कर रहे हैं, वो उससे डीरेल करेंगे। तो लख दिए फिर और की ये पीछे की बचदा फिर। खैर, आगे से डॉक्टर पेंगर कहते हैं टेक अ चिल पिल, यू आर एक्टिंग लाइक हिज फैन बॉय। अपने पेंगर को गुस्सा आ गया, अगर तुमके फैन बॉय बने हुए टेक अ चिल पिल। आगे से प्रॉपर गाली दी। एफ यू, I hate him as much as any of us. I just want a proper way to take him down. These idiotic attempts are stupid. Learn before you open your mouth. अच्छा, अब यहाँ से मुझे लग रहा है कि ये जो फ्रूट मक्खी ना कोई सीनियर बंदा है इनका, कि जो उसको शट अप कॉल दे रहा है आगे से कि मुंह खोलने से पहले कुछ सोच लिया करो, सीखो कैसे बात की जाती है। मैं भी उससे उतनी नफरत करता हूँ, बस मुझे कोई प्रॉपर तरीका चाहिए। जो तुम लोग चवले मार रहे हो ये ठीक नहीं है। फ्रूट मक्खी, कोशिश तुम भी कर लो। बेहतर ये है कि अच्छे तरीके से बात मान जाओ हमारी। जो गंद फैलाया हुआ है ना तुम लोगों ने, ट्रांसजेंडरिज्म के नाम पे, एथीज़्म के नाम पे, फेमिनिज्म के नाम पे, छोड़ दो इन हरकतों को। जो हरामकारी तुम्हें अपने घरों में अच्छी लगती है, मेरे पास हक नहीं है कि तुम्हारे घरों में झांकता फिरूं। असल जो तुम अगर सोल्यूशन चाह रहे हो तो वो ये है कि इस्लाम के पीछा जो तुमने पड़े हुए हो, छोड़ दो। तुम इस्लाम पे ऑफरंट एक कॉज करते रहोगे, हम तुम्हें हर जगह मिलते रहेंगे और ऐसा ही होगा। फिर तुम्हें लड़कियां भी छोड़नी पड़ेंगी, हर वो चीज़ जो तुम कर सकते हो ना वो। और वो जो मेरा ईमेल एड्रेस पूछते हैं मेरी टीम को फ़ोन कर करके, सॉरी ईमेल एड्रेस, मेरे घर का एड्रेस पूछते हैं। और वो जो मेरे सेशंस में आके कहते हैं कि सोच लें कहाँ तक जाएंगे, तो मैं उनको कहता हूँ कि मैंने तो सोच लिया है, आप भी सोच लें। तो हमारा तो ईमान है, तुम नहीं मारोगे वैसे मर जाएंगे। इल्मी इख्तलाफ करना है, इल्मी इख्तलाफ की हद तक रखो। इस्लाम पे जो मर्ज़ी एतराज़ करो, हमें कोई एतराज़ नहीं है, जवाब देंगे आगे से। लेकिन अगर तुम हेल बेंट हो और इस कदर तुम लोग अब तंग आ चुके हो हमसे कि तुम इन हरकतों पे आ गए, तो तुम्हारा क्या ख्याल है? ये तो तुम भी कन्फर्म करे हो कि इन हरकतों से हमने पीछे नहीं हटना। गालियाँ दोगे, क्या करोगे? गाली किसे दोगे? मेरी माँ को, मेरे बाप को, मेरे बच्चों को? तुम्हें पता नहीं है हमारा मोटो क्या है? फ़िदा का उम्मी व अब्बी व औलादी व नफ़्सी व रूही या रसूल अल्लाह। तुम्हारी हर गाली के आगे बढ़ते हैं हम ये। लगे रहो तुम। यू वांना टेक केयर ऑफ अस? या गो ऑन। आगे से पिंगर का जवाब आता है कि आई डिडंट मीन टू ऑफेंड यू यार, बट आई फील आई कैन टेक हिम ऑन एनीवे। व्हाट इज द प्लान अबाउट हिम? प्लान क्या है? आगे से फ्रूट मक्खी का जवाब है कि आई डोंट हैव कनेक्शन विद ऑल अदर ग्रुप्स। वो पता नहीं ग्रुप तो कितने कितने ने, को ग्रुपों का भी तुमने ऊपर ग्रुप बनाया हुआ है। कितने के बंदे छोड़े हुए हैं? कितने के बंदे छोड़े हैं? अच्छा। बट आई नो दे आर फाइंडिंग सम गोरा। एक बारी फिर लख दी लानत तोड़े, तभी एहसास कमतरी से बाहर नहीं आए तुम। टू एंड हिज करियर। वो कौन सा कैरियर? मेरा कैरियर है मेरा। ये तुम्हारा क्या ख्याल है मैं पैसे इससे कमा रहा हूँ? कोई हाल नहीं थोड़ा। एनीवे, नीड अ मैन ऑफ साइंस, नॉट गाली क्लाउन्स हु थिंक प्रोवोकिंग विंस डिबेट्स। अच्छा, ये मशवरा बड़ा अच्छा दिया फ्रूट पकी ने। प्रोवोकिंग
इट डज़न्ट विन डिबेट्स। वाक़ई आप लोगों को डिबेटर अच्छा चाहिए होगा, चलें आपको गोरा लेके आना चाहते हैं, बड़ी खुशी होगी आपके गोरे साहब से बात करके। लेकिन फिर ये बात याद रखना, सारी ज़िंदगी तुम में से अगर किसी ने डिबेट का कहा तो हम यही कहेंगे नहीं यार अब कोई गोरा ही लेके आओ। फिर अगर हमने मूल गाना छोड़ दिया, फिर शिकवा ना करना फिर। अच्छा ये ऊपर वाले 2 में से छोड़ दें, ये कंटिन्यूएशन है पिछले वाले की, मैं फ्लो इसका बरकरार रखना चाहता था। अच्छा, यहाँ पे पिंकर ने वो जो वीरू प्रधान आया था, उसको जवाब दे रहा है जिसने कहा था कि मेरी ब्यूटीज़ हैं। उसको जब जवाब दे रहा है और कह रहा है कि व्हाट यू मीन, अगेन ग्रामर को साइड पे रखें। तो वीरू की तरफ से आगे जवाब आता है व्हाट्स डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, मुश्किल क्या है मेरी बात में जो तुम्हें समझ नहीं आई? लड़कियाँ होंगी, वो इस पे डोरे डालेंगी और उसके बाद कोई काबिल एतराज़ पिक्चर्स होंगी, काबिल एतराज़ ऑडियोज़ होंगे, वो रिलीज़ करेंगे, इसका काम ठप हो जाएगा। यानी कि वो कह रहा है इसमें कौन-सी तुम्हें बात समझ नहीं आई? इस पे फ्रूट मक्खी दोबारा से छलांग लगाते हैं लगाती हैं और वो कहते हैं कि ज़रूरत ना पड़े शायद। यहाँ ये कन्वर्सेशन खत्म हो जाती है। मुझे नहीं मतलब इसका पता कि ज़रूरत ना पड़े शायद का क्या मतलब है। इसका एक मतलब ये हो सकता है, चलें जितने भी पॉसिबल मीनिंग्स हैं टॉप से स्टार्ट करते हैं। एक मतलब इसका ये हो सकता है कि शायद वो लोग वाक़ई इस्लाम की जान छोड़ देंगे, नहीं हमारे बस की बात नहीं है, जाने दें मुसलमानों को अपना काम करें वो। दूसरा ये हो सकता है कि वो वाक़ई जिस गोरे को लेके आ रहे हैं कि चलें इसको इल्मी एतबार से ही आगे लेके चलते हैं, ये भी हो सकता है। और तीसरा ये है कि ज़रूरत ना पड़े शायद कि ये कोई इनके अपने ग्रुप में ऐसा हो कोई कोई ब्यूटीज़ द हेल में किस लेवल पे आना पड़ रहा है हमें। कोई ऐसी ना हो जिनसे ये काम लेना चाह रहे हों। अ, इंसान हूँ, मेरी भी सोच की हदें किसी तरफ जाती हैं। तो एआई को यूज़ करें कल ये, क्या आई डोंट नो कि इसका क्या मतलब है कि ज़रूरत ना पड़े शायद। अब वो साहब से मेरा मज़ीद राब्ता नहीं है, मुझे पता नहीं है कि उनसे कैसे इन्फॉर्मेशन मज़ीद ली जा सकती है। ना उनका ईमेल है, ना कुछ और है, बस इतना ही कहा गया कि बी केयरफुल दे आर कमिंग आफ्टर यू और 2 इन्फ्लुएंसर्स का नाम है, दूसरे साहब का मैंने बता दिया है। ये है हालत इन लोगों की, इस कदर गंदे और ज़लील लोग हैं ये। अब सोच सकते हैं कि इल्मी और फ़िक्री बहसों में ये किस हद तक गिर चुके हैं ये, किस हद तक गिर चुके हैं। तो मैं सब ज़्यादा वो पिंकर जो है वो ही ज़्यादा अच्छा था। क्योंकि वो कह रहा है कम से कम कि मैं उसको इल्मी तौर पे मैं उसको मैं उससे बात करना चाहता हूँ। चलिए लफ्ज़ उसने स्ट्रॉन्ग इस्तेमाल किया, डिस्ट्रॉय करना चाहता हूँ, व्हाटएवर। पूछ रहा है वो ये रहा है कि मैं लाइव जाऊँ उसकी स्ट्रीम में या मैं उसको डिबेट का कहूँ। तुम लोगों ने आगे से और बता रहे हो पता नहीं क्या क्या-क्या तुम्हारे इरादे हैं। ख़ैर चलें इट इज़ व्हाट इट इज़। ये थी वो कुछ चीज़ें आपके सामने लाना ज़रूरी थी कि ये इस कदर गंदे लोग हैं। अब